Is it clear? Is it clear to everyone? Yes, sir. So actually interrupt is a two type. One is a maskable interrupt, another is a non-maskable interrupt. Maskable interrupt, you know, those interrupt I cannot enable or disable. Non-maskable, we cannot disable the interrupt. Always it will be enable. Always it will be enable. Always it will be enable. Sir, live example. Live example is smoke detector. Smoke detector always 24 hours is on. So this kind of sensor or this kind of interrupt is called non-maskable interrupt. And some interrupt means maybe you have a you have a alarm, or you have a available that is the fan will be on after 30 degree of temperature. You can do a program for your home that your fan will be on after 30 degree of temperature. Maybe you're not required, so you just off it. No issues for that. So those kind of interrupt is called maskable interrupt, which can be enabled, can be disabled. And those interrupt cannot be enabled or disabled, it's always enable, then it's called non-maskable interrupt. Okay, there are 5 interrupt. So in a after heading, what are the headings? Interrupt and externally initialization signal. Am I right? Interrupt and externally initialization signal. Am I right? What is the name? Tell me. It's in number, I think E. Yes, sir. It's E. E इसका नाम क्या है? Interrupt and externally initialization signal. Am I right? Yes, Yes, sir. sir. So heading करके लिखो. We have several interrupt signal and several externally initialization signal. Those are as follows. 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 Sir, एक बार In 8085, several interrupt and several externally initialization signals are available. Those are as follows. अभी heading करो interrupt signal. अभी heading करो interrupt signal. Number 1, trap. Number 2, RST 7.5. Number 3, RST 6.5. Number 4, RST 5.5. Number 5, INTR. Okay? Is it clear? 5 interrupt. Is it clear? Yes, sir. Next, can you tell me what are the requirement, the interrupt in microprocessor or any processor? What is the requirement of interrupt? Sir, for providing delay. Providing delay. Sometime, but not in the major cases. कभी तुम लोग बोलो प्रोसेसिंग स्लो processing slow. Sometime, but main reason is not that. कभी तुम लोग कोई पावर प्लांट में विजिट किए हो? कोई पावर प्लांट एनटीपीसी हो, चाहे तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर प्लांट है,
ओ प्लांट पावर प्लांट है, डीवीसी है, यस सर। कभी किए हो? वेरी गुड। देखना उधर में जाके, मान के चलो बॉयलर के बारे में जानते हो? बॉयलर, यस सर। अच्छा, यस सर। बॉयलर के ऊपर में एक ड्रम रहता है, उसको हम लोग बॉयलर ड्रम बोलते हैं, ठीक है? बॉयलर ड्रम कैसा होता है? बॉयलर, एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज द बॉयलर, हियर देयर इज अ वाटर टैंक, हियर देयर इज अ वाटर टैंक, इधर वाटर रहता है, इधर में भी वाटर रहता है। इसको बोलता है रिंग हीटर, इसको बोलते हैं बॉयलर ड्रम। बॉयलर ड्रम एक्चुअली नेम इज बॉयलर ड्रम। ये बॉयलर ड्रम, ये बॉयलर ड्रम में कितना वाटर रहेगा अभी, इसका मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है। देखने में इतना छोटा है मगर इतना छोटा नहीं है। वाटर लेवल कितना है? पूरा ड्राई हो जाएगा तो बॉयलर ड्रम बास्ट कर सकते हैं। ऐसा यू कैन रीड इट, देयर इज माय फ्रेंड, in my BTech friend, I'm not disclose his name. He's working in a thermal power plant or any other steel power plant, steel power plant in Varanasi, and it will be blast and he is no more. So basically, what are the reasons? I find it out why it is this kind of accident is done. Say this is the water level, how much water is there, it will be measured, and if below the water level there may be a hooter or any lights will be glow on, so that the engineer can able to understand that the water level is decreases. So now it should be increase the water level. What are the procedure and how it will be done, that will be the different issue, but it can be done as much as possible, as soon as possible. So basically it will be whenever the level is set point is given, that is say 30 centimeter. Below 30 centimeter hooter will be on. Say after 80 centimeter hooter will be on. Means a siren will be occurring, so that you can able to understand that water level is high or water level is low, something like that. Is it clear, everyone? Is it clear? Yes sir. Yes sir. Something like, maybe in your room there is a AC room you have, and your grandmother or your grandfather is not well, and doctor says that his room temperature should be maintained within 25 to 30 degrees centigrade, not below that, not after that. So if temperature is below 25, then one kind of siren will be occurred, so that you can switch on your room heater and switch off your AC. Similarly, if room temperature is more than 30, then room heater will be switch off and AC will be switch on. Am I right? Is it clear, everyone? Yes sir. So as a result, we can maintain the temperature. Remember, these are the 5 interrupt which available in 8085. Through that, any external interrupt can be enter into the microcontroller. Any external disturb can be enter into the microprocessor, and according to that, microprocessor write a program or to switch on any hooter or switch on any fan, light, etc. So these are the 5 interrupt. Remember, trap is always non-maskable interrupt. Trap is the non-maskable interrupt, like Ankita. Trap is always non-maskable interrupt, and these 4 is maskable interrupt. These 4 is a maskable interrupt. What do you mean by maskable interrupt, and what do you mean by non-maskable interrupt?
कैन यू टेल मी? मस्केबल वाला ऑलवेज अवेलेबल रहता है सर, उसको off Always नहीं करना। on, always on, right? Excellent, always on. And maskable वाला ना नॉन maskable वाला? बोलो पवन, यस सर, maskable वाला ना नॉन maskable वाला? मस्केबल वाला ऑलवेज अवेलेबल नहीं रहता है सर। ना और non-maskable? नॉन maskable को तुम कभी ऑफ नहीं कर सकते, इट्स ऑलवेज ऑन, लाइक उल्टा देख- अंकिता। एंड यस सर, ये जो बाकी सारा है इसका है क्या ना, इसको तुमको मास्क भी कर सकते हो, नॉन मास्क भी कर सकते हो। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट। इज इट क्लियर? Yes, sir. Like Akash Dubey. नेक्स्ट अनदर थिंग सर, एक प्रॉब्लम है, तुम लोग तो सारा हमारे पास इंटरप्ट ही हो, जो क्वेश्चन करोगे तो इंटरप्ट ही हो। मान के चलो एक साथ 3-4 क्वेश्चंस किया तो मैंने कैसे आंसर दूंगा? 4 आंसर एट अ टाइम देना पॉसिबल है? बोलो सर क्वेश्चन अगर सेम रहेगा तो ना, अलग अलग क्वेश्चंस किया। रोहन बोलो। एक टाइम नहीं पॉसिबल है सर आंसर देना। एक टाइम पॉसिबल नहीं है, वेरी गुड। तो मान के चलो रोहन ने क्वेश्चंस किया, अंकिता ने किया, ओनू ने किया एंड ब्रोजेस ने किया, चारों क्वेश्चन एक साथ आया, तो मैंने किसका आंसर पहले दूं? अंकिता का। अंकिता का क्यों? एक ही साथ क्वेश्चन किया, कोई सब एक ही साथ क्वेश्चन किया, एकदम सेम टाइम में क्वेश्चन किया। तो सर अभी आप जो टॉपिक पढ़ा रहे अगर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है तो पहले उसका देंगे, उसके बाद सारा उससे रिलेटेड है, सारा उससे रिलेटेड है। तो आपका मर्जी, जो आप कीजिएगा। हमारा मर्जी, मगर हमारा मर्जी भी एक होगा, मतलब हमारे पास किसी का प्रायोरिटी है। मान के चलो इस 4 जन के अंदर, तो आप पहले अंकिता का दीजिएगा सर। ना अंकिता को नहीं भी दे सकते, मतलब मैं भी दे सकता है, मैं नॉट भी दे सकता है, कि हमारे पास कौन प्यारा है। से मान के चलो यू नो ब्रजेस रेसिडेंस इज वेरी नियर टू मी, very near to me, and he is very close to me, so ब्रोजेस के आंसर मैं पहले दूंगा। ऐसा होता है ना, कोई कोई क्लास में किसी के साथ कोई टीचर्स का रिलेशंस बन जाता है तो उसके आंसर पहले हो जाता है। तो ऐसे ही इसके अंदर भी एक, इसको बोलता है प्रायोरिटी, इसको भी बोलता है एक प्रायोरिटी। किसी का हाईएस्ट प्रायोरिटी है, किसी का लोएस्ट प्रायोरिटी है, एक प्रायोरिटी लेवल रहेगा। ऐसा तुम्हारा 37 भी स्टूडेंट क्वेश्चंस करेगा हमको, हमारा प्रायोरिटी के हिसाब से हम एक एक करके देंगे। ऐसा नहीं हम किसी को उठा के दे देंगे, जो जिसको हमको अच्छा लगेगा पहले उसको देंगे, जिसका कम अच्छा लगेगा उससे कम अच्छा लगेगा, ऐसे करके चलते रहेगा। Am I right? So I have a priority level, means I have a priority list. You know, किसको मैं पहले आंसर दूंगा, किसको हम बाद में आंसर दूंगा, something like that. It's clear to everyone? Yes sir. Unfortunately, trap is the highest priority. Means Ankita is the highest priority. Highest priority is the trap, and the lowest priority is INTR. As a priority level, second highest, third highest, fourth highest, and that is the last. This is the priority level of the interrupt. मतलब एक ही साथ 5 इंटरप्ट आ सकता है, मगर पहले जिसका हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगा उसको हम लोग पहले सर्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जी सर। तो ऐसे करके 5 इंटरप्ट हम लोग एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी लोएस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से भी दे सकते हैं। तो इसके बोलते हैं हम लोग प्रायोरिटी लेवल, इसके बोलते हैं हम लोग मास्केबल नॉन मास्केबल। थर्ड एक अनदर पैरामीटर है, तुम जब क्वेश्चंस कर रहे हो उसका आंसर देना। इंडियन इंडिपेंडेंस डे बोलो रोहन। 15 अगस्त। 15 अगस्त, वेरी गुड, 15 अगस्त। तो रोहन ये आंसर कैसे दिए तुमने? सर याद था। याद था?
हम थोड़ा डिटेल्स में बताएं। हाँ सर। तुम इस हार्ड डिस्क जो है ना, ये हार्ड डिस्क रोहन का भी पास भी है, सबके पास भी है, इसके अंदर कोई ना कोई जगह में लिखा हुआ है, जब भी ये क्वेश्चंस किया, उसका एक क्वेश्चन है उसके साथ मैच किया, उसी जगह में एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसके आंसर ए होगा, वो आंसर एग्जीक्यूट किया, प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया रोहन ने। कभी कभी क्या हो जाता है ना, मेमोरी लोकेशन गड़बड़ा जाता है। 15 अगस्त की जगह में हम शायद बोल दिया 26 जनवरी, मतलब हमारा जो लोकेट कर रहा है वो थोड़ा गड़बड़ा गया। 15 अगस्त का जो मेमोरी लोकेशन है उसको ना लोकेट करके 26 वाला जनवरी जो है उसको लोकेट कर दिया। इज इट क्लियर? यस सर। तो मतलब हर एक का एक एक प्रोग्राम है। मैंने अभी से रोहन को बोला, रोहन कैन यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। रोहन क्या करेगा? मान के चलो हम लोग अभी क्लासरूम में है, रोहन क्या हाँ, करेगा? क्या करेंगे सर? पानी, अगर मेरे पास बोतल होगा तो हम आपको बोतल देंगे, बोतल अदरवाइज है, तुम्हारे पास ग्लास है, कॉलेज में ग्लास है, तुम ग्लास लेकर जाकर पानी लेकर आओगे। Am I right? It's required 3 to 4 minutes. हाँ सर। मगर मान के चलो मैंने बोला रोहन तुम्हारे पास जो बोतल है हमको दे दो, तुम क्या करोगे? जल्दी जल्दी तुम्हारे बैग में जो है उसको दे दोगे। तो आंसर कभी कभी छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, दैट विल बी कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द सिचुएशंस, completely depend upon the questions. Like Indian Independence Day answer is very small, and if I am saying you like a questions, how India independent, मतलब इंडिया इंडिपेंडेंस कैसे आए थे, तो ये आंसर 15 अगस्त बोलने से चलेगा? नो सर। इसमें बहुत सारा आदमी का नाम बोलना पड़ेगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बहुत बहुत सारा का आदमी का नाम बोलना पड़ेगा, हर एक के लिए डिटेल्स बोलना पड़ेगा, ये इन्होंने एक किया, इन्होंने एक किया, इसके बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस आया था। Am I right? यस सर। तो जो क्वेश्चन आएगा उसी के हिसाब से आंसर बनेगा। कभी कभी आंसर बड़ा हो सकता है, कभी कभी आंसर छोटा हो सकता है, जो भी हो इट विल बी स्टोर्ड इन द मेमोरी, देन यू कैन गिव द आंसर, अदरवाइज नॉट। ये जो मेमोरी लोकेशंस है, ये मेमोरी लोकेशंस प्री डिफाइंड भी रह सकता है, और तुमको बाहर का कोई एक्सटर्नल हार्डवेयर लगा के उसका मेमोरी लोकेशन भी सेट कर सकते हो। जैसे ये चारों फर्स्ट 4 इंटरप्ट, मतलब अप टू दैट, इसके लिए मेमोरी लोकेशन फिक्स्ड है, यू कैन नॉट चेंज। ऑटोमेटिकली इधर में इंटरप्ट आएगा तो एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में चला जाएगा। मान के चलो इसके लिए है 0024, कब भी इंटरप्ट आएगा तो 0024 मेमोरी लोकेशन में चला जाएगा, उधर जो प्रोग्राम लिखा हुआ रहेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। 0024 मेमोरी लोकेशन में जाएगा, उधर में जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये जो चारों इंटरप्ट है इसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर इंटरप्ट, इसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर इंटरप्ट। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। एंड इसको हम लोग बोलेंगे नॉन वेक्टर इंटरप्ट, क्योंकि इसका कोई एड्रेस नहीं है, ये बाहर का एक हार्डवेयर लगाना पड़ेगा, बाहर का एक सर्किट लगाना पड़ेगा, उसके बाद इसका मेमोरी डिफाइन होगा, उसके बाद इसका मेमोरी डिजाइन होगा। तो ये बाहर का हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड करता है, ये खुद से कोई मेमोरी लोकेशंस नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन वेक्टर इंटरप्ट। मगर ये लोग डायरेक्ट कोई ना कोई एड्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे इसको वेक्टर इंटरप्ट। इज इट क्लियर? Is it clear to everyone? Yes, sir. So now questions will become like that. Give me a 2 example of maskable vector interrupt. क्या होगा? Give me a 2 example of maskable vector interrupt. RST 6.5 और 5.5 And 7.5 वो भी होगा, ट्रैप भी होगा। ट्रैप होगा? ट्रैप नहीं होगा। नहीं वो नॉन मास्क।
A non-maskable interrupt. Now question is non-maskable vector interrupt. Trap. Next, maskable non-vector interrupt. INTR. INTR. Remember, all those short questions may become. So I'm given the explanations why is called vector, why is called non-vector, why it's a highest priority, it's a lower priority, not depend upon anything. And these are the non-maskable interrupt, then these are the maskable interrupt. Okay, everything is done. Sir, now how many students is there in the class? कितना है सर? 33. 33, very good. 33 student in the class. अभी इसके अंदर सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी मैंने दिया है, अनु को, राइट? सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी मैंने अनु को दिया है. अनु को अच्छा लगेगा ना क्या खराब लगेगा? अनु क्या बोल रहे हो? अनु क्या बोल रहे हो? तुम अच्छा लगेगा क्या खराब लगेगा? शायद अनु है ही नहीं. चलो इसका एग्जांपल देके कोई फायदा नहीं है. मान के चलो नेहा कुमारी, आर यू देयर? नेहा, आर यू देयर? नेहा, आर यू देयर? यही तो मुश्किल हो जाता है ना. अनि, आर यू देयर? Yes, sir. बाबा इधर हो तुम? कोई फोन करके बुलाया तब आया. हेलो सर. हाँ बोलो. सर मेरा फोन ना दूसरे रूम में है सर. है हम मतलब तो चार्ज नहीं हुआ. दूसरा रूम में रख के तुम दूसरा रूम में क्लास कर रहे हो? सर हम एक साथ क्लास करें अनु के साथ. अच्छा, मतलब अनु के साथ कौन कौन है? तुम कौन बोल रहे हो? सर नेहा. वाह, वेरी गुड. अनु भी नहीं है, तुम भी नहीं है. चलो अच्छा है. अच्छा, अनु को लेकर ही एग्जांपल दे रहा था. 30 आउट ऑफ 33 स्टूडेंट्स, अनु इज द लास्ट प्रायोरिटी. मतलब सब एक साथ क्वेश्चंस करेगा तो मैंने अनु को आंसर सबसे लास्ट में दूंगा. अनु को अच्छा लगेगा क्या बुरा लगेगा? सिंपल क्वेश्चन यार, बहुत टफ किया क्या? बुरा लगेगा उसको. किसी को भी बुरा लगेगा. तभी अनु को कैसे हम समझाएंगे? मतलब क्या उसको कुछ देखो उसको देना पड़ेगा, मतलब कुछ तो ब्राइब देना पड़ेगा ना, तब जगह तो अनु तो नॉर्मल सिचुएशंस में आएगा ना. नहीं तो अनु को तो हर एक टाइम में अच्छा खराब ही लगेगा. तो कैसे उसको मनाए? उसको मनाने का दो तरीका है. एक, हम बोलेंगे अनु तुमको सबसे हाईएस्ट मार्क्स देंगे हम सेमेस्टर में. और नहीं तो दूसरा, अनु को मैंने एक बहुत बड़ा चॉकलेट दे देंगे, कैडबरीज. तो अनु खुश हो जाएगा, राइट? यस सर. ऐसे किसका सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है? बोलो, लोएस्ट प्रायोरिटी किसका है? INTR का. तो इसका खराब नहीं लग रहा है? इसको No, भी sir. खराब लग रहा है. तो लग इसके रहा है. लिए ही सिर्फ इसके लिए ही एक एक्नॉलेजमेंट है, उसका नाम है INTA बार, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट. सिर्फ INTR के लिए ही है, INTA बार. What is the acknowledgement signal? Whenever any interrupt coming through INTR, always INTA bar given a signal to INTR that your question is received. I will give the answer shortly. Means, say everyone can ask the questions. Whenever Anu asks any questions, I will be say first I say one line, Anu, I will be give your answer shortly. बट मान के चलो अंकिता क्वेश्चंस किया, चाहे आकाश क्वेश्चन किया, चाहे आफ्ताब क्वेश्चन किया, मैंने किसी के लिए कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं देंगे जो तुम्हारा क्वेश्चन रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं बताएंगे. सिर्फ अनु जब क्वेश्चंस करेगा, मैंने बोलूंगा तुम्हारा क्वेश्चंस मैंने रिसीव किया है, आई विल बी गिवन यू आंसर शॉर्टली. इज इट क्लियर?
इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया कि नहीं आया बोलो? नो सर। देखो इधर 5 इंटरप्ट है ना, यस 5 सर। इंटरप्ट है। जैसे तुम लोग 33 स्टूडेंट हो, इधर 5 है। इसके अंदर सबसे लोएस्ट इंटरप्ट है, लोएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट। लोएस्ट प्रायोरिटी मतलब सबसे लास्ट में जिसको आंसर देंगे हम, वो है INTR। वो है INTR। ये लोग जब क्वेश्चंस पूछेगा और कोई भी इंटरप्ट आएगा, आई कैन नॉट गिव एनी एक्नॉलेजमेंट, आई विल नॉट गिव एनी एक्नॉलेजमेंट। मान के चलो अभी ब्रोजेस ने जो क्वेश्चंस किया, हम कोई बोलेंगे नहीं जब हम तुम्हारा क्वेश्चन रिसीव किया कि नहीं किया। शायद ब्रोजेस किया, अंकिता किया, जो भी क्वेश्चंस कर रहे हो तुम लोग 33 के स्टूडेंट के बीच में, हम किसी को नहीं बोलेंगे जो तुम्हारा क्वेश्चन रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। मगर जब मान के चलो मैंने ओनू का क्वेश्चंस रिसीव करेंगे, कभी ओनू इंटरप्ट करेगा और क्वेश्चंस करेगा, मैंने तुरंत ओनू को बोलेंगे जे आई एम रिसीव्ड योर क्वेश्चंस, आई विल बी गिवन योर आंसर शॉर्टली। क्या शॉर्टली बोलेंगे? क्योंकि ओनू इज द लोएस्ट प्रायोरिटी, मतलब सबसे लास्ट में प्रायोरिटी है उसको। बाकी सारा का आंसर देंगे हम, उसके बाद ही ओनू का आंसर देंगे। तो ओनू खुश हो जाएगा जो सर किसी को आंसर नहीं देते हैं, जे हम क्वेश्चन रिसीव किया कि नहीं किया, मगर हमारा जो क्वेश्चन हम किए हैं सर तुरंत बोल दिया जाए हम क्वेश्चन तुम्हारा रिसीव किया है, आई विल बी गिवन यू द आंसर शॉर्टली। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। SREP एंड SREP INTR का ही एक्नॉलेजमेंट होता है। INTA बार, उसका नेम है INTA बार। बाकी कोई इंटरप्ट का एक्नॉलेजमेंट सिग्नल नहीं है। SREP INTR का एक्नॉलेजमेंट है INTA बार। ओके, so when this signal goes low, it indicate that the acknowledgement signal of INTR is the acknowledgement signal given by INT for INTR. So this is the acknowledgement signal of INTR. Okay, बाकी किसी का acknowledgement signal नहीं होता है। Okay, is it clear? यस सर। So interrupt is closed. Next I will be coming into the first hold. It's a very important signal. Next, externally initialization signal. Some externally initialization signal, those are as follows. Then number 1, hold. Some externally initialization signal, those are as follows. Then hold. Everyone draw the diagram of pin configurations. Anyone? पिन का जो डायग्राम मैंने ड्रॉ करने बोला था नेट से, कोई किए हो? एक जन भी नहीं किया? किए सर। वेरी गुड संतोष, ये होल्ड पिन है ना उसके अंदर, पिन कॉन्फ़िगरेशन पिन के डायग्राम के अंदर? सर लेकिन सर हम घर आ गए हैं, कॉपी हॉस्टल में ही है। तो कैसे होगा? इसीलिए तो मैंने ड्रॉ करने बोला था ना। वो जब भी वो देखोगे तुमको पता चलेगा सर अभी ये स्पिन के बारे में फंक्शन बता रहा है। मैं इसीलिए बोला था यस्टरडे, तुम एक डायग्राम गूगल में मिल जाएगा, तुम ड्रॉ कर लेना। अरे गूगल में है, जो भी है। होल्ड सिग्नल, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नल। सर कभी क्लासरूम में बैठ के क्लास किए हो? सर एनीवन कोई क्लास में बैठ के क्लास किए हैं? लैब किए थे सर। लैब किया था? कोई थ्योरी क्लास? नो सर। लॉकडाउन से पहले किए थे। लॉकडाउन के पहले ही बोल रहे हैं, किए हो ना? यस सर। वेरी गुड। सो मान के चलो इधर किए, कोई स्कूल में किए हो वो भी चलेगा। ऐसे करके चेयर सजा हुआ रहता है, 1 रो 2 रो ऐसा चेयर वो सजा हुआ रहता है। Am I right or not? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसा सजा हुआ रहता है। यस सर। जिधर में स्टूडेंट लोग तुम लोग ये करते हो, मतलब रहते हो। इज इट क्लियर? यस सर। सो बेसिकली मान के चलो क्लास में वो बोला ना तुम लोग अच्छा स्टूडेंट हो, मगर हम अच्छा स्टूडेंट नहीं थे। क्या क्या होता है ना कभी कभी क्लास में,
ये जो बच्चा है पीछे बैठे हुए है, इसका नाम है मान के चलो ब्रोजेश कुमार। ब्रोजेश कुमार, मान के चलो ये फ्रंट बेंच में जो बैठे हैं उसका नाम है पवन कुमार। पवन कुमार। इधर में लास्ट में कोने में बैठे हैं बोजेश कुमार एंड फास्ट में बैठे हैं पवन कुमार। अभी क्लास में तो डिस्टर्ब करना ही है, तो बोजेश कुमार क्या करेगा, एक बुक है उसके पास, वो देना चाहता है ये पवन कुमार को। इज इट क्लियर? माई कॉन्सेप्ट इज क्लियर? ब्रोजेश कुमार के पास एक बुक है, वो पवन कुमार को देना चाहता है। इज इट क्लियर? क्लास चल रहा है इसके अंदर, यस और सर। पेन देना चाहता है। इज इट क्लियर? यस सर। तो क्या करेगा, पहले इधर में अपने से आगे वाला। इधर में एससी खड़ा है। एससी मतलब एससी मतलब क्या है? एससी खड़ा है मतलब कौन खड़ा है? टीचर आप अरे टीचर। हम सुदीप्त चक्रवर्ती आप खड़ा खड़े है। हैं सर। सुदीप्त चक्रवर्ती खड़े हैं। हम इधर उधर घूमते रहते हैं। कोई स्टूडेंट जब पढ़ाते हैं ना, तुम्हारा हम सोचे एक बार लैब लेंगे कॉलेज में जाके, देखते हैं कब होता है, फरवरी में होगा, उसके पहले हम लोग थ्योरी खत्म करते हैं। तो हमें पूरा साइड में घूमता है, देखते हैं कौन लिख रहा है, कौन पढ़ाई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो ये है हमारा फंक्शन टोटल। तो बीके क्या करेगा, पहले रिक्वेस्ट करेगा हमको, सर एक बुक हमको इसको देना है और एक पेन सर मैंने पीके को देना है। तो फर्स्ट रिक्वेस्ट करेगा हमको, हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ठीक है दे दो। जब देंगे बोला है, इसको छोड़ दिया, अभी क्या करेगा, इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर, ये सारा चलता रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। तो हमारा क्लास थोड़ा हैम्पर होगा, क्लास थोड़ा बंद करना पड़ेगा। एक्चुअली यही तो चाह रहे थे तुम लोग, हाँ या ना? Yes, sir. ये एक्चुअली अभी नहीं सर। है, बोलो ब्रजेश। पीके नहीं चाह रहा था सर, बीके चाह रहा था। अच्छा अच्छा। तो ऐसे करके हर एक क्लास में डिस्टर्ब क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा, हाँ क्या नाम बोला था उसको जो नहीं था, पिंकी क्लास में नहीं था ना, क्या पिंकी तो नाम बोला था ना, क्या सर अनु अंकिता। अनु तो हो गया था, पिंकी नहीं था। वो बोला ना दूसरा घर में मोबाइल है सर। नेहा नेहा। नेहा 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 नेहा, वेरी गुड। नेहा तो क्लास में रहता नहीं है। नेहा को तो कुछ काम देना पड़ेगा, क्लास भी करेगा नहीं, अटेंडेंस भी लेगा, सब कुछ करेगा, ऐसा तो चलेगा नहीं। तो मैंने क्या किया, नेहा मान के चलो कोई एक बेंच में बैठता है, इधर बैठता है नेहा कुमारी। मैंने नेहा कुमारी को बोला, जो जितना सारा ऐसा बुक्स पेन्स जरा ट्रांजैक्शंस होगा, सब तुम्हारा थ्रू होगा बेटा, सब तुम करोगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हम कोई प्रॉब्लम होगा, किसी का कोई प्रॉब्लम होगा, हमारा काम नहीं चलेगा तो मैंने तुमको पकड़ूंगा। ये जो काम है, इधर से इधर डेटा ट्रांसफर करना, इधर से इधर डेटा ट्रांसफर करना, इधर से इधर बुक, इधर से पेन, जो भी ट्रांसफर है सब नेहा का थ्रू होगा। नेहा नाउ इज जस्ट लाइक ए सीआर ऑफ द क्लास। तो अभी कोई भी प्रॉब्लम होगा थ्रू नेहा को बोलेगा, नेहा ये डेटा ट्रांसफर करा देगा, हम इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होंगे। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। इसमें क्या सुविधा होगा हमारा, बोलो तो? आपको पढ़ाने में डिस्टर्ब नहीं होगा सर। वेरी गुड, पढ़ाने में डिस्टर्ब नहीं होगा। तुम लोग जो करना है आपस में करो भाई। कोई कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमारे पास तो ये है ही, इसको हम पकड़ेंगे, तुम ये क्यों किए, राइट? इज इट क्लियर? यस सर। इसका एक नाम है, इसका नाम है डीएमए कंट्रोलर। नेहा का नाम है डीएमए कंट्रोलर, फुल फॉर्म डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। फुल फॉर्म डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस
कंट्रोलर। हर एक प्रोसेसर में, तुम्हारा मदरबोर्ड में भी होता है डीएमए कंट्रोलर, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। कभी कभी तुम लोग भी करते हो, तुम्हारे पास किसी के पास लैपटॉप है, किसी के पास डेस्कटॉप है, तो तुम लोग देखना पेन ड्राइव से डेटा एक कॉपी देके तुम लोग एक टाइप कर रहे हो, क्या इंटरनेट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब डेटा ट्रांसफर पीछे में चल रहा है मगर सामने में तुम दूसरा कुछ काम कर रहे हो। कैसे? एक डीएमए कंट्रोलर है जो कि ना डेटा ट्रांसफर करता है, और जो तुम काम कर रहे हो, जैसे कोई टाइप कर रहे हो और कोई इंटरनेट देख रहे हो, वो अलग से हो रहा है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर और नॉट? किसी का कोई डाउट्स है तो बोलो। किसी का कोई डाउट्स नहीं है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। बोलो अनु, बोलो। किसी का कुछ बोलना है? हम सोच लिया तुम लोग सब समझ गए हो। तृप्ति बोलो, कुछ बोलना चाहते हो? तृप्ति तो देखा। नो सर। नो सर, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं नेहा कैसे काम करेगा। नेहा क्या करेगा? नेहा अभी बीके किसको रिक्वेस्ट करेगा? नेहा को। नेहा को। अभी नेहा का नाम भूल जाओ, नेहा के बदले में हम क्या बोलेंगे? डीएमए। डीएमए कंट्रोलर, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। नेहा का आज से नाम हो गया डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। तो बीके किसको रिक्वेस्ट करेगा? डीएमए को, राइट? जे मैंने ये डेटा अभी पीके को देना चाहता हूं, राइट? यस यस सर। सर। अभी डीएमए कंट्रोलर इससे लेकर तो इसको देगा, मगर बीच में तो हम खड़ा है, हम तो इधर उधर घूमते रहता है, तो हमारे साथ तो डीएमए कंट्रोलर को तो हेड ऑन कोलिशन हो जाएगा। तो डीएमए कंट्रोलर क्या करेगा? एससी मतलब माइक्रो प्रोसेसर को, मतलब प्रोसेसर को रिक्वेस्ट करेगा, सर आप सामने जाकर पढ़ाइए, ये जगह छोड़ दीजिए, ये जगह का नाम है एक्सटर्नल बसेस। सर प्लीज रिलीज ऑल द बसेस, I can transfer the data so that you can do your job very well. So मैंने क्या करूंगा, इधर ना खड़ा होकर हम सामने जाकर पढ़ाना शुरू कर देंगे, हम सामने जाकर पढ़ाएंगे। उसके अंदर डीएमए कंट्रोलर को जो डेटा ट्रांसफर करना है बीके से लेकर पीके को देना है, वो देके फिर नेहा अपने आप जगह में बैठ जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो बीके रिक्वेस्ट करेगा डीएमए कंट्रोलर को, डीएमए कंट्रोलर रिक्वेस्ट करेगा माइक्रो प्रोसेसर को। ओके, हमारा नाम ही माइक्रो प्रोसेसर है, राइट? यस सर। माइक्रो प्रोसेसर जब रिलीज करेगा तब डीएमए कंट्रोलर को बोल से मान के चलो हम इधर है, हम मान के चलो इधर है, मान के चलो हम इधर है, कोई जगह में है, तो हम क्या करेंगे? मैं इधर से इधर जाके मैंने बोलूंगा डीएमए कंट्रोलर को, नाउ यू कैन ट्रांसफर द डेटा, आई एम ऑलरेडी लीव द बसेस। तो ये भी माइक्रो प्रोसेसर भी डीएमए कंट्रोलर को बोलेगा, नाउ आई एम रिलीजिंग द बसेस, सो यू कैन गो अहेड विद दैट। ये जो डीएमए कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर को रिक्वेस्ट करता है, इस सिग्नल का नाम है होल्ड। डीएमए माइक्रो प्रोसेसर जो डीएमए को सेंड करता है, इसको नाम है HLDA। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। तो माइक्रो प्रोसेसर के लिए होल्ड क्या है? इनपुट सिग्नल है। माइक्रो प्रोसेसर के HLDA क्या सिग्नल होगा? और माइक्रो प्रोसेसर के लिए आउटपुट होगा। आउटपुट होगा। वेरी गुड। सो होल्ड सिग्नल अभी लिखो, समझ में आया ना? होल्ड सिग्नल, इसका भी एक नाम है जो जब डीएमए कंट्रोलर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ये है यूजर्स, ये है मेमोरी लोकेशंस। डीएमए रिक्वेस्ट बोलता है, DREQ जो वही है। अभी जरूरत नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ये दो ही सिग्नल है, क्योंकि ये इसके साथ रिलेटेड है, होल्ड एंड HLDA। ओके, फर्स्ट हेडिंग करो होल्ड। होल्ड इज क्लियर एवरीवन? क्या फंक्शन कर रहे हैं? जब डीएमए माइक्रो प्रोसेसर को जो रिक्वेस्ट भेजेगा सर सिग्नल, उसका भी नाम अलग है क्या? डीएमए कंट्रोलर
माइक्रो प्रोसेसर को जब सिग्नल देगा उसका वही सिग्नल तो होल्ड, उसका ही नाम है होल्ड प्रोसेसर अगर डीएमए को देगा वो, है, अगर माइक्रो प्रोसेसर इधर से फिर जो सिग्नल आएगा उसका उसका नाम है HLDA, अच्छा उसका नाम है HLDA, HLDA होल्ड एक्नॉलेजमेंट। इज इट क्लियर पवन? यस सर। तो ये दोनों सिग्नल हम लोगों को पढ़ना है माइक्रोप्रोसेसर के अंदर, होल्ड एंड HLDA। फर्स्ट इज होल्ड ना, तो लिखो, this is a signal given by the DMA controller to the microprocessor. This is a signal given by the DMA controller to the microprocessor. This is a signal given by the DMA controller to the microprocessor. This is a signal given by the DMA controller to the microprocessor. This is a signal given by the DMA controller to the microprocessor to release all the external buses, to release all the external buses, to release all the external buses. Next, HLDA, heading karo number 2, HLDA. HLDA. After receiving the hold signal, microprocessor complete the present instructions. Microprocessor complete the present instruction. Microprocessor complete present instruction. एक बार फिर से सर। HLDA ना hold, अच्छा हाँ हाँ hold और HLDA, HLDA बोलिए फिर से। HLDA हाँ, HLDA फुल फॉर्म लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, होल्ड एक्नॉलेजमेंट। अभी लिखो होल्ड एक्नॉलेजमेंट, अभी लिखो आफ्टर रिसीविंग द होल्ड सिग्नल, आफ्टर रिसीविंग द होल्ड सिग्नल, आफ्टर रिसीविंग द होल्ड सिग्नल, किसका लिखवा रहे सर? HLDA का? HLDA, after receiving the hold signal, microprocessor complete the present instructions. Microprocessor complete the present instructions. And released all the buses to the DMA controller. And released all the buses to the DMA controller. In that particular time, microprocessor all the buses release all the buses to the DMA controller, to the DMA controller, to the DMA controller. In that particular time, microprocessor released a HLDA signal. In that particular time, microprocessor released a HLDA signal. In that particular time, microprocessor released HLDA signal. Okay. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Next is number 3. It's also very, very important. Ready. Ready. Is it clear? Ready? What is a ready? What do you mean by ready? Huh? Are you ready for class?
Yes, sir. What do you mean by ready? तैयार होना sir. तैयार होना. Very good. Say, I give an example. What is a PC? I just give the answer. Just listen carefully. PC is nothing but a program counter. The next instruction to be executed that address something stored in the PC. That is the function of program counter. Are you able to understand? No, sir. Sir, why not? Because you are the slower device. I am the faster device. You are the slower device and I am the faster device. If your speed and my speed is equal, then you know you can able to understand. So how you able to understand? Like, what do you mean by PC? Yes, sir. PC is nothing but a, yes, sir, program counter. Yes, sir. The next instruction, yes, sir, store into the PC. Yes, sir. That is the function of program counter. Yes, sir. So in this way, you know, if I am given the answer, who says that yes, sir? Who says the yes, sir? DMA. No, ये yes, sir, तुम लोग बोलोगे हमको. BK. तुम लोग बोलोगे ऐसा समझ में आया, तब ना जाकर हम नेक्स्ट वाला कुछ बताएंगे, नहीं तो हम तो पुराना वाला ही बोलते जाएंगे. हम हर एक टाइम में तुम्हारे पास से एक्नॉलेजमेंट लेते हैं. क्यों लेते हैं? ये तुमको ये समझ में आया, इज यस, देन आई एम गो फॉरवर्ड, आई एम नेक्स्ट. इफ नॉट, देन आई विल बी रिपीट वंस अगेन. इज इट क्लियर? यस सर. सो ये जो तुम लोग यस सर बोल रहे हो, मतलब यू आर अ स्लोअर डिवाइस, यू गिव मी एक्नॉलेजमेंट, आइदर पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट. समझ में आ रहा है तो यस, समझ में नहीं आ रहा है तो नो. जो भी है, ये जो एक्नॉलेजमेंट दे रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं रेडी सिग्नल. इसको हम लोग बोलते हैं रेडी सिग्नल. इज इट क्लियर? यस सर. और भी एक वेरी गुड एग्जांपल है. मान के चलो हमारे पास 10 ठो बॉल है. इधर में सबसे अच्छा मान के चलो क्रिकेटर है, से चिरंजीव इज अ वेरी गुड क्रिकेटर. He can catch all the balls. So मैंने ऐसे करके देंगे, एक पकड़ के रख देगा, उसके बाद दोबारा ऐसे करेगा तो हम सेंड करेंगे तो पकड़ पाएगा. मगर हम ऐसे 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 फेंकते रहेंगे तो चिरंजीव पकड़ पाएगा? No, sir. नहीं सर. तो यही है रेडी सिग्नल. रेडी सिग्नल means whenever Chiranjeev again raise the hand, if I am sending the another one, then Chiranjeev can receive. So that means slower peripheral is ready, then given a ready signal. Otherwise wait till ready signal is high. जब तक रेडी सिग्नल नहीं देंगे तब तक मैं दोबारा कोई बॉल नहीं छोड़ेंगे. जब तक तुम लोग यस सर नहीं बोलोगे तब तक हम कुछ नहीं बोलेंगे आगे, जो हम करते ही रहते हैं. इज इट क्लियर? यस सर. Yes, sir. तो लिखो रेडी सिग्नल. This signal used to sense whether a slower peripheral is ready or not. Whether a slower peripheral is ready or not. If ready signal is high, then Again repeat it, sir. क्या बोला? This signal used to sense the weather. This signal is used to sense whether slower peripheral is ready or not. This signal is used to sense whether slower peripheral is ready or not. If this signal is high, then microprocessor send another data. 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 If this signal is low, then microprocessor wait till it is high. Then microprocessor wait till it is high. Then microprocessor wait till it is high.
Is it clear? Yes, sir. This is the ready signal. Next is reset in. Next is reset in. Next is reset in bar actually. Next is reset in. Is it clear? Reset in. Okay. Reset in is clear. What is reset in next? It's a very, very important reset in another pin. I already told you that what do you mean by hang? Machine hang हो जाता है ना, कभी कभी कंप्यूटर hang हो जाता है, हो नहीं पाता है. What do you mean by machine hang? What do you mean by machine hang? बोलो. machine का hang मतलब क्या है? सर काम करना बंद कर देता कुछ ना टाइम। एक्चुअली क्या होता है, मैंने बोला था पिछला दिन माइक्रो कंट्रोलर पढ़ने के टाइम, कभी कभी क्या होता है ना, मशीन इनफाइनाइट लूप के अंदर पड़ जाता है, जो लूप से निकल नहीं पाता, एक ही लाइन बार बार रिपीट हो जाता है, इसीलिए उस टाइम में कोई कीबोर्ड काम नहीं करता, इसको बोलते हैं मशीन हैंग. ये मशीन हैंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, रिस्टार्ट बटन प्रेस करता है, रिस्टार्ट. सो क्या होता है, कंप्यूटर फिर से शुरुआत से बूट करके फिर जगह में आ जाता है. ये रीसेट इन है वही काम. To reset the microprocessor, to reset the microprocessor. So write down, when this signal goes low, when this signal goes low, microprocessor will be reset. When this signal goes low, microprocessor will be reset. When this signal goes low, microprocessor will be reset. When this signal goes low, microprocessor will be reset. Is it clear? मतलब सर लेकिन रीसेट और रीस्टार्ट दोनों डिफरेंट चीज है ना? रीसेट और रीस्टार्ट दोनों डिफरेंट चीज है ना? एक ही है, एकदम सेम टू सेम है. रीसेट इन है उसका पिन का नाम, मगर जो काम हो रहा है उसको रीस्टार्ट ही बोलते हैं. जो काम हो रहा है उसको रीस्टार्ट ही बोलते हैं, राइट? सो रीसेट इन, यू नो, जस्ट is the name, and restart is nothing but a function. सर तो रीसेट आउट क्या होता है? रीसेट आउट अभी आ रहा है. सर बोलून गुड आफ्टरनून. अच्छा, ঠিক স্যার, আমি পরে কথা বলি, আমি ক্লাস নিচ্ছি. बोलो क्या क्वेरी है, बताओ. Reset in is clear to everyone? यस सर. सर किसी का डेस्कटॉप कंप्यूटर है? किसी का? यस सर. डेस्कटॉप कंप्यूटर है, वेरी गुड. जब रिस्टार्ट करते हो तो एक लाल लाइट जलता है ना? यस सर. इसका मतलब है रीसेट आउट सिग्नल. It means that microprocessor is reset. It means that microprocessor is reset. Next is reset out. Next is reset out. Write down reset out. Reset out. Reset out. Next is reset out. Is it clear? रीसेट आउट या फिर रीसेट आउट बार? ना, बार नहीं है, सिर्फ reset out. When this signal goes high,
when this signal goes high, it indicate that microprocessor is reset. It indicate that microprocessor is reset. It indicate microprocessor is reset. It indicate that microprocessor is reset. It indicate that microprocessor is reset. And the last, not the least, that is clock out. सर Yeah. रीसेट इन का ये जो फंक्शन है, ये कंप्लीट होने के बाद रीसेट आउट हर बार अपने आप ये चलेगा? अपने आप ही चलेगा, राइट। कोई काम करने से पहले तक रीसेट आउट, जैसे तुम्हारा डेस्कटॉप पीसी में, लैपटॉप में भी होता है, जब भी रिस्टार्ट करोगे देखना एक लाइट जलेगा, हम लोग उसको हार्ड डिस्क लाइट बोलते हैं। तो एक्चुअली वो जो लाइट जलता है जब माइक्रोप्रोसेसर इज रीसेट और प्रोसेसर इज रीसेट, ये समझाने के लिए। नेक्स्ट इज क्लॉक आउट। सर तुम लोग फास्ट लिखोगे क्या, धीरे धीरे लिखोगे क्या, मतलब मीडियम स्पीड में लिखोगे, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अभी जो लिख रहे हो तुम लोग नोट्स, टीचर के ऊपर सर। उसके ऊपर अभी हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। एम आई राइट? यस सर। हम बोलेंगे चलो आज शुरू करो माइक्रो प्रोसेसर का क्लास, तुम लोग समझ जाओगे सर बहुत धीरे धीरे पढ़ाएगा। अभी हम शुरू करेंगे व्हाट डू मीन पीसी, पीसी इज नथिंग प्रोग्राम काउंटर, द नेक्स्ट टू बी एग्जीक्यूटेड, दैट इज अ फंक्शन ऑफ प्रोग्राम काउंटर, सो यू विल राइट सो फास्ट, right? So that will be completely depend upon me. So clock out is a signal which is given by the microprocessor to other peripheral as a system clock. तुम लोग कितना फास्ट कितना स्लो काम करोगे, that will be completely depend upon me. That is the completely depend upon the processor. प्रोसेसर के साथ जो पेरिफेरल रहता है, जो हेल्पिंग हैंड रहता है, उसका क्लॉक देता है माइक्रो प्रोसेसर ने। सो लिखो क्लॉक आउट, इट इज अ सिस्टम क्लॉक, it is a system clock for other peripherals. It is a system clock, it is a system clock of other peripherals. It is a system clock of the other peripherals. Okay, next is serial IO. Serial IO. Serial IO. Serial IO. What is a serial IO? What is the function of serial IO? Full form: serial input output. Full form: serial input output. First heading करो, number 1, SID. SID. Full form is serial input data. Serial input data is serial input data. Serial input data. Okay. SID is serial input data. Okay. Is clear? Serial input data. yes sir. The data serially in through this pin. The data serially in through this pin when RIM instruction executed. When RIM instruction executed. When RIM instruction executed. सर थ्रू दी के बाद When through this pin, when RIM instruction, RIM instruction
will be executed. Next, SOD, serial out data. Full form serial out data. Full form serial out data. The data serially out, the data serially out through this pin, the data serially out through this pin, the data serially out through this pin when SIM instructions will be executed. When SIM, SIM instructions will be executed. Next question is, what is a RIM and what is a SIM? Next question is, what is RIM and what is SIM? RIM full form, Reliance India Mobile. Am I right? No, sir. And SIM, what is a SIM? SIM तुम लोग जो यूज करते हो उसका SIM का फुल फॉर्म क्या है? बताओ. तुम लोग जो SIM यूज करते हो उसका फुल फॉर्म क्या है? बोलो. सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सर। देख के बताया, यस इतना सर, टाइम नहीं लगता था. गूगल करके बताएं सर, नहीं पता। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सबको जानना चाहिए था, मगर इसका ये नाम नहीं है. इसका इधर नाम है सेट इंटरप्ट मास्क एंड ये है रीड इंटरप्ट मास्क. RIM full form is read interrupt mask and SIM is set interrupt mask. Set interrupt mask and read interrupt mask, that is the function of RIM and SIM. I will be explain RIM and SIM in details after 10 class. It's a very important also, RIM and SIM. Short note will be coming on RIM and SIM. So RIM and SIM I will be explain you after. सर सिम का फुल फॉर्म क्या बोले सर? Set interrupt mask. Set, SET set. Set interrupt mask. Set interrupt mask. Set interrupt mask and read interrupt mask.